Today we will discuss in detail about registration under GST. Today we start. Today we will discuss in detail, thoroughly about registration under GST. आज हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं? Why registration is required? What is the procedure of registration under GST? What are the benefits of registration under GST? Do persons already registered under previous acts have to again register themselves under GST? And some practical problem and solution related to registration process and cancel. Do person already registered under previous act have to again register themselves under GST? Practical problem and solution. Which practical problem? Number 3, do persons already registered under previous acts have to again register themselves under GST? Number 4, practical problem and solutions. कुछ practical problem solutions है that is related to GST registration and registration process that will be very helpful, very helpful during our practical registration. That will be very cancel. Practical problem take. Number 4 is practical problem and solution. This chapter help you for making registration of a businessman, of a taxpayer, while you are cancel. Number 4, start. Number 4, some practical problem and solution related to GST registration process. Why registration is required? Registration is indispensable requirement which provides identity to the taxpayer. Registration enables the taxpayer to fulfill the tax compliance of the taxing authority. Number 1 क्या है? Number 1, रजिस्ट्रेशन टैक्सपेयर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. ये आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब इसका जो जीएसटीएन नंबर होगा इसका एक आइडेंटिटी होगा. Number 2, registration enables the taxpayer to fulfill the tax compliance. Cancel. Start. Why registration is required? Registration is indispensable requirement which provides identity to the taxpayer. Number 1, provides identity to the taxpayer. Number 2, registration enables the taxpayer to fulfill the tax compliance requirement of the taxing authority. ये टैक्सिंग अथॉरिटी जो मतलब जो सेल टैक्स ऑफिस है उसको एनेबल कर देता है आपके ऊपर जितना भी टैक्स कॉम्प्लायंस है मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो भी उसको लागू करने का मतलब एनफोर्स करने का. Number 3, registration means obtaining a unique identifier number from the concerned tax authority. That is आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा. That is the GSTIN. That is your unique identity. रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपको आइडेंटिटी मिलेगा, आइडेंटिटी नंबर मिलेगा which will be unique and that there is no duplicate copy of this number. Okay, that is unique. This unique identity number shall be used by the tax authority to identify the taxpayer instead of the name of the taxpayer. इसमें जो होता है कि आपको जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है ना तो आप आपका नाम से नहीं आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर से पहचाने जाओगे. मतलब रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? एक तो टैक्सपेयर को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, दूसरा आप रजिस्टर्ड होने के बाद टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी का जितना भी रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंस है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा. 3, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगा, यूनिक आइडेंटिटी दैट इज जीएसटीएन नंबर. Number 4, this unique identity number shall be used by the tax authority to identify the taxpayer instead of the name of the taxpayer. ये यूनिक आइडेंटिटी आपको मिलने के बाद आप यूनिक आइडेंटिटी नंबर से जाना जाओगे. ठीक है. एडवांटेज ऑफ बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का जीएसटी
रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? नंबर 1, रिकॉग्निशन एज लीगल सप्लायर। जब आप रजिस्ट्रेशन ले लिए आप लीगल सप्लायर हो गए। नंबर 2, लीगल ऑथराइजेशन टू कलेक्ट टैक्स। टैक्स अथॉरिटी को एक लीगल अथॉरिटी मिल गया आपसे टैक्स कलेक्ट करने का। नंबर 3, लीगल ऑथराइजेशन टू पास क्रेडिट टू हिज बायर। ये जो होता है ना, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का चक्कर आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 4, लीगल ऑथराइजेशन टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें 2 टाइप का बेनिफिट होता है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम ITC फॉर हिमसेल्फ। नंबर 2, रजिस्टर्ड पर्सन कैन पास ऑन ITC टू हिज रेसिपिएंट ऑल्सो। अगर ये लीगल ऑथराइजेशन आपको ITC क्लेम करने का नहीं मिलेगा ना, तो ये दो जो है रजिस्टर्ड ITC क्लेम करने का, ITC पास करने का अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, आपको एक लीगल अथॉरिटी लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा? GST रजिस्ट्रेशन के जरिया होगा। तो इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद आप ITC क्लेम कर सकते हैं एंड ITC पास कर सकते हैं। नंबर 5, इसमें क्या होता है, सीमलेस फ्लो होता है। एक ITC का जो सीमलेस फ्लो होता है ना, ये चार्ट में हम दिखाए, फ्लो चार्ट में, ये एक सीमलेस फ्लो होता है नेशनल लेवल में। पूरा इंडिया में एक सीमलेस फ्लो होता है। ये तभी स्टार्ट होगा जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई स्टार्ट करेगा। वेट, अरे डिस्टार्ब করলে কি করে এরকম ভাবে? আবার তোমার মানে তাই জানো শেষ হয়ে যাবে একটা स्टार्ट। ये सीमलेस फ्लो ऑफ ITC एट नेशनल लेवल। ये देखिए सीमलेस फ्लो ऑफ जो ITC है ये क्या होता है। सपोज मिस्टर एक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर वाई को सप्लाई किए और इसमें रजिस्ट्रेशन GST चार्ज किए 10,000। अभी मिस्टर वाई मिस्टर जेड को गुड्स सप्लाई किए, गुड सर्विस जो भी है सप्लाई किए, GST चार्ज किए 11,000। जेड मिस्टर पी को गुड्स सप्लाई किए, इसमें चार्ज किए GST 13,000। अभी पहले इसको समझते हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सप्लाई किए एंड GST चार्ज किए 10,000। ये 10,000 गवर्नमेंट का चला गया। अभी मिस्टर वाई मिस्टर जेड को सप्लाई किए, 11,000 चार्ज किए। इसमें जो नेट टैक्स पेबल जो होता है 10,000, 11,000 माइनस 10,000, 1,000, ये गवर्नमेंट का घर में चला गया। फिर जो है जेड पी को सप्लाई किए, इसमें 13,000 GST चार्ज किए। अभी कितना जाएगा गवर्नमेंट का घर में? 13,000 माइनस 11,000, दैट इज 2,000 लेगा गवर्नमेंट। अभी देखिए ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये जो सीमलेस फ्लो है, ये रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई है। अभी यहाँ पर जो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब भी सप्लाई स्टार्ट करेगा, मतलब जब सेलिंग करेगा बायर को, तब ये सीमलेस फ्लो जो है ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टैक्स पे कर रहा है, ये वाई इसको टैक्स पे कर रहा है। ये जो बाकी का जो टैक्स है 10,000 जो है गवर्नमेंट को दे दिए, बाकी जो बैलेंस जो है 11,000 माइनस 10,000 या 1,000 फिर गवर्नमेंट के घर में चला गया। फिर वाई जो जेड जो वाई को पे किए 11,000 माइनस 10,000 ये 1,000 ये गवर्नमेंट लेके चला गया। फिर जो है 13,000 माइनस 11,000 जो मतलब जेड और पी में जो ट्रांजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो 2,000 यहाँ पर यह भी गवर्नमेंट के घर में चला गया। तो यह जो टैक्स सीमलेस फ्लो है ये रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है। जब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, मतलब जब सेल करेगा, अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है, एक्चुअली जो टैक्स पेयर है, टैक्स इंसिडेंट जिसके ऊपर आता है, हाँ, जब आता है वहाँ पे चेन ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है सीमलेस फ्लो ऑफ ITC एट नेशनल लेवल। पूरे इंडिया में यही होता है। जब भी मतलब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाएगा तब ये ब्रेक कर जाएगा। नेचर, फीचर एंड एसेंशियल ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है?
नंबर वन, रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। दिस इज रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन नंबर होना बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। हाँ, इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कोई नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये जो नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है ना, इसका दो टाइप का होता है। जैसे एक इसका मालिक होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है या चेयरमैन होता है, जो भी कंपनी का मालिक होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो कंपनी का मालिक होता है ये इंडियन भी होता है, नॉन इंडियन भी होता है। ठीक है, सपोज अमेजन में, अमेजन का जो मालिक है तो ये तो अमेरिका का है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो और एक होता है, सपोज हमारा शॉपक्लूज जो है, इसका मालिक इंडियन भी है। ये दोनों एग्जाम्पल देखिए। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका जो एजेंट होता है, सपोज अमेजन का जो है, अमेजन का जो बिजनेस पर्सन यहाँ पे है, मतलब जो ऑथराइज बिजनेस पर्सन है, ही इज कंसिडर्ड एज ए नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। इसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? इन केस ऑफ बिजनेस, सॉरी, सिंस नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन विल जनरली नॉट हैव पैन ऑफ इंडिया, ये नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन का पैन इंडिया में होता नहीं है। ही में ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन सबमिशन ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज वैलिड पासपोर्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो पासपोर्ट है उसको वैलिड पासपोर्ट है, मतलब इसका एक्सपायरी नहीं हो गया है, ये विद इन एक्सपायरी डेट में है। लाइव पासपोर्ट है, जो उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा। And signed an application along with the application signed by the authorized signatory who is an Indian resident having valid PAN, that is शॉपक्लूज का जो मालिक होता है, इसका एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा उसको ऑन बिहाफ ऑफ, इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाए, इसके बेसिस में एक एप्लीकेशन होना चाहिए और उसको मालिक का साइन होना चाहिए, बिजनेस ओनर का। इन केस ऑफ दूसरा केस जो इसका, जैसे अमेजन हम बोल रहे थे, अमेजन का जो हेड ऑफ ये है, जैसे अमेजन कैंसल, जैसे इन केस ऑफ अमेजन, जो पर्सन अमेजन के लिए यहाँ पर इंडिया में काम करता है उसके लिए क्या होता है? इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेट और एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड अलोंग विद हिज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर or unique number on the basis of which the identity is identified by the government of that country or its PAN if available। मतलब जो एमएनसी जो है, एमएनसी कंपनी का, जैसे मैं बोल रहा था अमेजन का, उसका जो पैन है, उसका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो सबमिट करना पड़ेगा। देखिए अच्छा से समझिए, जो इंडियन जो है, जो इंडियन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके इंडियन पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो उसका उसी कंट्री का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट मे बी द जीएसटीएन ऑफ दैट कंट्री और पैन ऑफ दैट कंट्री, वो देना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ओके। नंबर बी, फॉर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जैसे डिपार्टमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर हमको पता है ना, आंगनवाड़ी सेंटर, ये आंगनवाड़ी सेंटर का हेड होता है, मतलब ऑफिस का जो हेड होता है, ये बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर का एक हेड होता है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। सपोज ये तो बहुत सारे माल परचेज करते हैं, सपोज चाल, दाल, अलमीरा, बेंच, टेबल, चेयर, बहुत सारे माल परचेज करते हैं। तो इसमें क्या है, जब ये माल परचेज करेगा तब जो सप्लायर होगा, जो सप्लायर इसको माल परचेज करेगा, उसका बिल अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा, सिंगल बिल अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा, तो उसको उसका बिल से 1% टीडीएस, ये सीडीपीओ को काटना पड़ेगा। ये टीडीएस अंडर सेक्शन 51 कैंसिल स्टार्ट फॉर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, ये पर जो होता है ना, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज डीडीओ जो होता है ना, डीडीओ मीन्स ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, इसको पैसा उठाने का और डिसबर्स करने का
अथॉरिटी होता है, इज कॉल्ड डीडीओ इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीडीओ का एक रोल होता है, जैसे एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर मीन्स जो हम लोग का, जो हम लोग जानते हैं ना, जो आंगनवाड़ी सेंटर, जो खिचड़ी ऑफिस बोलते हैं, तो आंगनवाड़ी सेंटर का, ये बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर का एक हेड ऑफिस होता है, वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये उसका जो हेड होता है सीडीपीओ, ये तो बहुत सारे माल सप्लाई करते हैं। सपोज बेंच, चेयर, टेबल और चाल डाल बहुत सप्लाई करते हैं। तो ये जो सप्लाई करता है, तो वो सप्लायर का बिल अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगा, तो ये डीडीओ उससे उसी बिल से 1% करके, जो जीएसटी टीडीएस होता है, ये टीडीएस नॉट इनकम टैक्स टीडीएस, ये उस बिल से 1% करके टीडीएस काट के जमा करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके लिए उसको GST-7 फाइल करना पड़ेगा। बहुत सेपरेट प्रोसीड्योर है, ये हम कभी भी नेक्स्ट क्लास में या सब्सिक्वेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डीडीओ रोल प्ले करते हैं, या पैन इंडिया में जो भी मतलब अकाउंटेंट है, जो भी डीडीओ है, इसके लिए बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये जो है, तो उसको ये टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा, उसके लिए उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसका पैन, मतलब उसका पैन या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब चाहिए। दूसरा चीज है क्या है, ये स्टेट वाइज और यूटी वाइज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन अंडर सेक्शन 25(2). ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रैक्टिकल काम के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब जीएसटी रजिस्टर करेंगे ना किसी का पर्सन का, हम लोग तो बहुत सारे चार्ज करते हैं। कोई जो वेबसाइट है, ये 1,500 2,000, कोई सीए एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म में 1,500 2,000, इससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर जो होता है ऐसा चार्ज कर लेते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक थ्योरी जो है, हम किसका बेसिस में रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन करेंगे और कितना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स कंपनी हैज डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स, then he has to take a separate state-wise registration for the branches in different states. Suppose इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में, तो इसका बहुत सारे ब्रांचेस है, हिमाचल प्रदेश में है, यूपी में, एमपी में, बिहार में है। ये सब ब्रांच के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हेडक्वार्टर जहाँ पे, इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ये जो दूसरा स्टेट में है, इसके लिए भी इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोग जब फाइलिंग करेंगे ना, रजिस्टर 1 फाइलिंग का क्लास करेंगे, तब देखेंगे इसका जरूरी क्या है। हाँ, इसका जरूरत क्या है सेपरेट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक एंटिटी हो जा रहा है, 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 ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तब ये जो स्टेट टू स्टेट सप्लाई होगा ना, तब GSTR-1 में तो ये IGST क्लेम होगा। तो उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन जरूरत होता है। केस 2 में, सपोज मिस्टर एक्स कंपनी हैज डिफरेंट ब्रांचेस विद इन अ स्टेट। एक ही स्टेट में अगर डिफरेंट ब्रांचेस होगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस में, he has to take single registration and he can declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business। यहाँ पे देखिए, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, तो डिफरेंट, मालदा में एक ब्रांचेस है, पुरुलिया में ब्रांचेस है, नदिया में एक ब्रांचेस है। इसके लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, लेकिन ये जो मेन ब्रांचेस, मेन जो हेडक्वार्टर जो है, ये होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और सेपरेट डिस्ट्रिक्ट में और सेपरेट प्लेसेस में जो भी ब्रांचेस होगा, ये होगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे हम लोग, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा वहां पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों जो है, इसको अच्छा से थोड़ा देख लेने एक बार स्लाइड में। नेचर, फीचर और एसेंशियल ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेम केस 3। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल विद इन अ स्टेट और यूटी। ये देखिए, बिजनेस वर्टिकल, व्हाट इज अ बिजनेस वर्टिकल? ये एक और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस वर्टिकल मींस, देखिए एग्जांपल देखिए, सपोज किसी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज ये जो यूनिट है होशियारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो वेस्ट बंगाल में है, इसका और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सेम स्टेट में, सपोज नोएडा में, नदिया में है, एक ब्रांच है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये प्लास्टिक चेयर का है, ये मालदा में है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? ये मालदा में ही है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
क्या किसके लिए, आयरन फर्नीचर के लिए। तो देखिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये डील करता है एकदम सेपरेट चीज के लिए, ये बाथरूम फिटिंग के लिए, ये प्लास्टिक चेयर के लिए, ये आयरन फर्नीचर के लिए, और ये मेन जो हेडक्वार्टर ये होशियारी गार्मेंट्स के लिए। तो ये जो है ना एक अलग एक each each of other is distinguishable, कैंसल। ये जो होता है ना ये एक ये सभी डिफरेंट टाइप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये बाथरूम फिटिंग, ये प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग, ये आयरन फिटिंग का आयरन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये एक अलग से डिफरेंट है। तो इसके लिए एक एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, और ये जो है मालदा के लिए पर 4 रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, हेडक्वार्टर के लिए, नदिया के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग, नदिया के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बाथरूम के लिए एक है, और ये प्लास्टिक चेयर और आयरन फर्नीचर ये मालदा में 2 प्लेसेस में है, इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये हम एक नाश्टल बना दिए, समरी बना दिए। ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। If somebody have branches in multiple states, then he need to take separate registration in each state. No centralized registration under GST. जो केस 2 था ये ब्रांचेस इन सेम स्टेट, ये जो इसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन प्लेस, कैंसल। ये ब्रांचेस इन सेम स्टेट, सिंगल रजिस्ट्रेशन इफ वन प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हमने पिछले साइड में ये जो है डिक्लेयर किया था। ठीक है, मेन जो है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये अदर ब्रांचेस है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं, देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम लोग का अराइज होता है। If a person is operating in different state with the same PAN number, can he operate with a single registration? क्या बोलना चाह रहा है, मतलब डिफरेंट सेटअप ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट विद द सेम पैन नंबर, इसका पैन नंबर एक ही है, कैन ही ऑपरेट विद सिंगल रजिस्ट्रेशन? ये सिंगल रजिस्ट्रेशन से क्या ये काम चला सकता है? नहीं, नो। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू टेक ए रजिस्ट्रेशन will have to get registered separately for each of the state where he has a business operation and is liable to pay GST. Okay, clear? देखो अच्छे से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में काम करेंगे। whether the registration granted to any person is permanent, ये रजिस्ट्रेशन जो हम लोग GST नंबर मिलेगा ना, ये क्या परमानेंट होता है या टेम्पोररी होता है? ये परमानेंट होता है। More than one registration, section 25, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each registration be treated as a distinct person for purpose of this act। जो GST एक्ट में बोल रहे हैं, मतलब ये जो डिफरेंट स्टेट में जो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे हम दिखा है ना, ये जो दिखा है, इसके लिए एचपी के लिए रजिस्ट्रेशन है, यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन है, एमपी के लिए रजिस्ट्रेशन है, जो भी हो, बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन है, या सेम स्टेट में जो अलग अलग ब्रांच के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो ये स्लाइड में हम दिखाया है, जैसे डिफरेंट वर्टिकल ऑफ बिजनेस, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो इसके लिए भी अलग अलग रजिस्टर लेना पड़ता है। कैंसिल। More than one registration under section 25(4), a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person। What is distinct person? यहाँ पर हम लोग देखेंगे distinct person क्या होता है। कैंसिल, स्टार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। ये डिस्टिंक्ट पर्सन होता है ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी,
shall in respect of each registration shall be treated as distinct person for the purpose of this act. मतलब मीनिंग क्या है इसका, जो एक पर्सन जो है ये इसका डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम पिछले स्लाइड में दिखाए थे, जैसे ये जो है हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है, डिफरेंट ब्रांचेस HP UP MP बिहार में जो रजिस्ट्रेशन है ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्यों डिस्टिंक्ट पर्सन है, हम पहले ही बोले थे ये जो GSTR फाइलिंग होगा ना ये इंटरेस्ट सप्लाई हो जाएगा, तो इंटरेस्ट सप्लाई इसके लिए भी GSTR फाइलिंग करना पड़ेगा। ये ट्रीटेड होगा सेपरेट पर्सन, जैसे ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है, ये मिस्टर पी है, ये मिस्टर क्यू है। तो ये सीमलेस फ्लो जो हम फर्स्ट लाइन में डिस्कस किए थे वो होगा, मतलब ये डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बोले है two unit of a same business is taken separate registration, both of them shall be treated as a distinct entity. The transaction between them will be classified as if such transaction has taken place between unrelated parties. जो अभी मैं बोले both the units shall be compulsorily required to do all the compliance such as filing, return, maintenance of books, of accounts, etc. separately. जो अभी मैं डिस्कस किया। In a word, distinct person are cases where head office and its branches are involved in a supply transaction. Okay. अच्छा यहाँ पर देखिए स्टॉप। यहाँ पर देखिए स्टार्ट। What is the GST identification number? That is GSTN. What is GSTIN? Before GST regime, all dealers registered under the state VAT law were assigned a unique TIN number, that is tax identification number, by the respective state tax authorities. जो हर स्टेट के जो टैक्स अथॉरिटीज होती है, दैट इज सेल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसको टिन इशू किया जाता है। Similarly, service providers were assigned a service tax registration number by the Central Board of Excise and Customs CBEC. सप्लाई के लिए गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए टिन नंबर और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए अलग से नंबर। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सेल टैक्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए CBEC के लिए CBEC द्वारा एक अलग से सेपरेट सर्विस टैक्स रजिस्टर नंबर इशू किया जाता है। In the new GST regime, all registered taxpayer will get consolidated. Cancel. Before GST regime, all dealers registered. Start. What is GST identification number? That is GSTIN. Before GST regime, all dealers registered under the VAT law were assigned a unique tax identification number, that is TIN number, by the respective state tax authorities. Similarly, service provider were assigned a service tax registration number by the Central Board of Excise and Customs CBEC. GST का पहले जो था ना, GST का पहले जो VAT था, VAT में दो नंबर, दो रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक जो सप्लाई एंड गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जो बिजनेस एंटिटीज है उसके लिए दो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाता है, एक टिन नंबर, एक सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी जो GST आने के बाद इसका चेंज हो गया, इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। फॉर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। दैट इज इन द न्यू GST regime, all registered taxpayer will get consolidated into one
cancel. Start. In the new GST regime, all registered taxpayer will get consolidated into one single platform for compliance and administration purpose and will be assigned registration number a single authority. अभी single GSTN number दिया जाता है. It is expected that 8 million taxpayer will be migrated from various platforms to GST. जब ये चालू होता है एक असेसमेंट था 8 मिलियन के आसपास जो टैक्सपेयर है उसको सिंगल नंबर से मतलब इसको आइडेंटिफाई किया गया है. All of this business will be assigned a unique goods and service tax identification number, that is GSTN. Structure of GSTN. Each taxpayer is assigned a state-wise PAN-based 15-digit goods and service taxpayer identification number, that is GSTN. ये छोड़िए, ये सेकेंड स्लाइड में जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ GSTN. फॉर्मेट ऑफ GSTN ये एक 15 डिजिट का होता है. जैसे हम बोले ना, ये 15 डिजिट का गुड्स एंड सर्विस GSTN नंबर होता है. फॉर्मेट ऑफ GSTN. फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड. जैसे हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट कोड होता है. देखिए 22 के लिए होता है छत्तीसगढ़, 23 मध्य प्रदेश, 24 गुजरात. ये हर एक स्टेट के लिए. वेस्ट बंगाल के क्या होता है, देखिए वेस्ट बंगाल के लिए सर 19 है, ये 19 वेस्ट बंगाल के लिए. तो स्टेट कोड होता है. ये जो पहले जो 2 डिजिट है ये 2 डिजिट है स्टेट कोड. फिर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है, ये 10 डिजिट के पैन नंबर होता है. ये टैक्सपेयर का पैन नंबर होता है, इसलिए पैन नंबर रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर मैंडेटरी होता है. फर्स्ट स्लाइड में बोला था हम लोग. ये 1 और Z ये जो होता है ये 13 डिजिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना. अभी ये मैं स्किप कर जाता हूँ. ये 13 और 14 डिजिट जो है ये एंटिटी कोड होता है. ये जो 5 डिजिट है ये चेक सम डिजिट होता है. मतलब ये जितना भी डिजिट होता है जैसे 2 2 और 1 इसका सम होता है 5. अभी जो है ये 13 और 14 डिजिट ये मैं अलग से एक्सप्लेन किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए the 13 digit indicates the number of registrations entity or person has within a state for same PAN. It is an alphanumeric number, first 1 to 9 and then A to Z, which will be assigned on the basis of number of registration an entity with the same PAN within the one state. Okay. For example, if an entity has one registration only within a same state, then 1 will be assigned as the first 13 digit of the GSTN. If the same entity obtain another registration for say a business vertical or and says within the same state, then the 13 digit of the GSTN assigned to this entity will become 2 and so on and so forth. Hence the legal entity can register up to 35 business vertical within a state. एक स्टेट में 35 बिजनेस वर्टिकल ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर से. तो समझे, मतलब ये जो हम पहले डिस्कस किए थे ना, एक स्टेट में जो ये जो है एक ही स्टेट में डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ये नहीं, ये जो है एक ही स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस में जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो बिजनेस वर्टिकल जो है ये अगर एक होगा तो 1 होगा. ये 2 यूनिट है तो वो 13 डिजिट चेंज करके 2 हो जाएगा. ये अगर 3 हो तो 13 डिजिट जो है वो चेंज होकर 3 हो जाएगा. ये जो है ये अगर 1 बिजनेस वर्टिकल है तो 1, 2 बिजनेस वर्टिकल है 2 और 3 बिजनेस वर्टिकल है उसके लिए 3 हो जाएगा. ओके. और ये जेड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है. ये 14 डिजिट इज असाइंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी. फॉर एग्जाम्पल जेड इज यूज्ड एज डिफॉल्ट 14 डिजिट इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है. ये स्टेट कोड दे दिए है यहाँ पर. टोटल जितना स्टेट है उसका स्टेट कोड है. इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसल. स्टार्ट. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए ये जो हम जो आपको बोल रहे हैं ना, ये स्लाइड में जो आपको इलेबोरेट कर रहे हैं, ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के लिए. है बार बार बोल रहा हूँ, ये बिना जाने आप लोग कभी भी फील्ड में मत नामिए, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन का वो ये चेंज हो जाएगा, उसका सभी खराब हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ठीक ठाक से नहीं होगा.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सबका अंदर, सब में शेयर कीजिए इसको, ये सबके अंदर ये होना चाहिए, चाहिए हम जो जान रहे हैं ये एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक बिजनेसमैन के। Where an applicant submit application for registration, within 30 days from the date he becomes liable to registration. तो आज हम यही से यह तक स्टेप रखते हैं। तो नेक्स्ट ये पार्ट 2 में जो होगा इसके बारे में और भी स्लाइड है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर्ड सब यूआईएन, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप का ये है जो है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसको मिस मत कीजिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंसी सब टैक्स कंसल्टेंट बन के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। कैंसिल स्टार्ट। आज हम यही तक स्टॉप करते हैं, इसके बाद बहुत सारे स्लाइड्स है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसमें अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको कैंसिल स्टार्ट। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट में होगा, ये हम लोग दूसरा पार्ट में देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाउ टू रजिस्टर यूआईएन, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर जो हम पहले बोले थे, ये सब हम नेक्स्ट व्हेन लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, डिफरेंट केस स्टडी होगा इसमें। हाँ, ये जो भी होगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज एक बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये वीडियो को बहुत सारे ये सब में शेयर कीजिए, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस फीचर्स और बेसिक ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कभी भी फील्ड में मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना नहीं चाहिए। क्योंकि विदाउट हैविंग दिस नॉलेज, विदाउट नोइंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक बिजनेस एंटिटी को जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अगर एक बार गलत हो जाए, उसका अमेंडमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बेहतर होता है इसको पहले ही हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, उसको जरूर देखिए, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्लास, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।